Olga, Yeah. nice to meet you, Olga. We are coming from India and okay. Vodka. Vodka. Hello, Gorbachev. Thank you for everything. Thank you for this brilliant idea. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज है तारीख 30 जुलाई और समय हो रहा है दोपहर के 3। कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा हमारा। हम लगभग रात के 3 साढ़े 3 बजे तक जागते रहे, पर मैं आपको दिखा नहीं पाया। एक्चुअली में यहीं पे एक पढ़ने वाला लड़का है लोकल, बेसिकली वो इंडिया से ही बिलोंग करता है, पर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। सो उसके साथ हो गया, चिल आउट कर रहे थे, आसपास घूमने गए, फिर साथ में मिलके हमने हॉस्टल में खाना बनाया। तो कल तक तो ये था, और आज फिर सुबह 3 बजे जब सोए हम, तो फिर उसके बाद उठने में ही लगभग सुबह के 11-12 बज गए। आज हम जा रहे हैं रशियन म्यूज़ियम फॉर वोदका। तो देखते हैं क्या है वहाँ पे उस म्यूज़ियम में, और फिर जा कर के आपको बताते हैं कि क्या क्या हमें देखने के लिए मिला, आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हमें यहाँ से बस लेनी है 3 नंबर की, ज़्यादा दूर नहीं है, सारी चीज़ें आसपास में ही हैं। तो यहाँ से 3 नंबर की बस ले कर के और चलते हैं। और दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फिर भी लोगों में देखिए इतनी धूप में भी लोग घूम रहे हैं। एक्चुअली में ये एंजॉय करते हैं इस गर्मी के मौसम को। अभी तो कोई बस दिख नहीं रही है। तो दोस्तों, हम उतर चुके हैं अपने गंतव्य के पास में ही, और आ चुके हैं यहाँ से बस 4 मिनट की वॉक के बाद आ जाएगा हमारा। ये तो मानना पड़ेगा, बड़ा प्लान्ड फॉर्म में बनाया है यहाँ पे। और मुझे कुछ यहाँ के लोकल्स बता भी रहे थे कि आप यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो विदाउट जो है परमिशन गवर्नमेंट के नहीं कर सकते हैं। इवन बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ के आर्किटेक्चर को चेंज करने के लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन आपको चेंज करने के लिए परमिशन मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो एक हेरिटेज साइट कह सकते हो। तो दोस्तों, आ गए हैं रशियन वोदका म्यूज़ियम में। हो भी क्यों ना भाई, यहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो यूजुअली लोग वोदका पीते ही हैं। यहाँ पे भी आपको बैठे हुए लोग दिख रहे हैं जो अपनी अपनी केन और बोतल्स लेकर के पी रहे हैं। हेलो, डू यू नो इंग्लिश? Oh, yeah? Okay, so it is a museum? Oh, yeah. Okay, so how actually it works? Hello. Yes, 2 person. Is it a chargeable? Ну, сейчас скажу. Не надо, Паша, не зови. हम पीते तो है नहीं, तो क्या हमें इस म्यूज़ियम को देखने के लिए चार्ज? Can I help you? Hello, nice to meet you. So we have to pay to look that around. Is it a chargeable? Museum, Yes, I just 250 rubles for one person. 250 rubles. Okay, so what's inside the museum? Only the making and all the things, or Yes, we have lots of different things, Okay. and all of these things can tell you some different facts about Okay. vodka in Russia. okay, all right. So when it is developed?
Means when it is established. In 2008. 2008. Okay. It shows the culture how the vodka is manufactured and all. Not how you can make vodka, but some different facts Okay. from ancient times till nowadays. All right. Okay. All right. So is it also a restaurant? Yeah, Okay. also a restaurant. All right. So 250 is only for the museum. Yeah. And but for if the you restaurant? would like to have some dinner, yeah, maybe Okay. in our restaurant it will be free for our guests to visit. So Yeah. how do we say that we are a guest for you or not? You say you to actually- me so accomplice. Okay. Okay. So what's your good name? My name is Olga. Olga. Yeah. Nice to meet you, Olga. We are coming from India, and Oh. it's pleasure to be Here here. is a medal. Okay. You can touch it, yeah. And in our second part also, you will see. Can you please, if you have 2 to 5 minutes time, can you please explain to all of this This is to our the subscriber? beginning of Okay. our museum. Okay. And it tells about ancient times where people made. So this is the picture of an ancient time, how the people are making the vodka, yes, right? Yes, some kind of. And so what is This that? monarch Isidore, he invented some The- kind of moonshine. So stick. vodka is invented here only, Russia. No, not only in Russia, but you know that vodka it's a Russian word. Okay. In Russian, water it's voda. Vada. Voda. Okay, so we And call when water. people drank distilling alcohol, it looks even nowadays. It looks like dirty water. Our people said, and even nowadays say, водичка, водюля, vodka, vodя. So it's Russian word. So water means Voda. vada, and it came from the water. Yeah, it Okay, comes from so water. name Like comes my from the sweetie water. pretty water, or my sweetie watery drink. In Russian, it's vodka, водичка. Yeah, some kind. At the time of Peter the Great, appeared this medal for Okay. drunkenness. It For means those who drank too much, okay. so invented this medal. Yeah, it's about 7 kilos. You can touch it. Those who can drink a lot, so Yeah. so they give them medals. They were given, yes, this Okay, so- medal, and they should wear on their neck for 1 week. Also, he founded St. Petersburg. You know Okay. what is the translation of St. Petersburg? No. No, St. Petersburg. It's some kind of Holland or Austrian word. It means the fortress of St. Peter. You know Okay. St. Peter? Yeah. Yes, Saint he Peter's. has keys from the heaven. And, Okay. Yeah, and St. Peter, he is some kind of patron of our city. And firstly, it wasn't the city; it was the Actually, fortress. Saint Peter's Peter Peter only. Cathedral, Okay. cathedral and fortress. The name of this. So he only developed the Saint Petersburg city, he right? founded the He city. founded. Yes. Okay. It was his paradise. Okay. He had. So here you write BOAKA, right? The letters are what? Vodka. B. V-O-D-K-A. Vodka. Okay. But if you saw the English alphabets, it's B, right? Where V is like this, like V, like Okay. victory will be. Okay. B for In English, it's B. Yeah. in English it's B, It's right? B, yeah, but it's vodka. V. Okay. Yeah, V in. According to Russian. Russian Yeah, alphabets. Yeah, in Russian, yeah. ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जो कि 2001 में इस्टेब्लिश हुआ और इसमें कई सेक्शंस में इस पूरे म्यूज़ियम को बांटा गया है और इसमें एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक के सारे इन्वेंशन और किस तरीके से वोदका का डेवलपमेंट हुआ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट और चीज़ें रखी गई हैं जिनसे वोदका बनाए जाते थे और कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पीटर द ग्रेट के टाइम पे वो लोग जो कि पार्टी में लेट आया करते थे उनको पेनल्टी ग्लास पीनी पड़ती थी, जैसे कि एक बड़ा सा ग्लास रहता था जिसे एक शॉट में ख़त्म करना पड़ता था। एक टाइम पे रशियन गवर्नमेंट ने वोदका के ऊपर बैन लगा दिया था ताकि वो वोदका को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके और उसके ऊपर हाई टैक्सेस या हाई चार्जेस लगा करके उसमें रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। इवन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वोदका का सिंपल सा मतलब होता है वाटर। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में वाकई में रशिया में
वोदका या फिर वदा, ये काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। ये इसलिए है क्योंकि वाटर जो होता है, जिसे रशियन में वदा बोलते हैं, वो भी एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। वही अगर वोडका को देखा जाए तो वो भी लगभग वाटर की तरह ही दिखता है, पानी की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम वोदका पड़ा। ये एक ऐसा यूनिक म्यूज़ियम है जहाँ पे तकरीबन 260 प्रकार की डिफरेंट वोदका की बोतल्स रखी हुई हैं। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि ये लगभग 2 भाग में बटा हुआ है। एक जो पार्ट है वो पूरा म्यूज़ियम को डेडिकेटेड है, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे एक्चुअली में आपको मिलेगा रेस्टोरेंट। और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे लोग आकर के यूनिक तरीके के डिशेस ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, म्यूज़ियम को घूमने के बाद हम आ चुके हैं आइजैक कैथेड्रल के पास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये कैथेड्रल जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। सेंट आइजैक कैथेड्रल ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास कैथेड्रल है, क्योंकि इसको बनने में तकरीबन 40 साल लग गए। ये सोवियत यूनियन के टाइम में बना था। और अगर मैं इसके गुंबद की बात करूं तो इसमें पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 100 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ था, जो कि इस कैथेड्रल को काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। उसके साथ में पहले के टाइम पे तो केवल ये एक म्यूज़ियम के तौर पे था, पर आज की बात अगर करें तो आज के टाइम पे शायद इसमें लोग पूजा करने के लिए, मतलब प्रेयर्स के लिए भी आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक तरीके का इसका आर्किटेक्चर है, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप इसमें बिल्डिंग के अंदर जा कर के, मतलब इस कैथेड्रल के अंदर जा कर के देखेंगे तो इसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग एक काफ़ी खूबसूरत शहर है। मतलब इस शहर में आप कहीं पे भी नज़र डालेंगे बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरती दिखेगी। इस शहर में आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, हर जगह आपको कैथेड्रल और चर्चेस दिखेंगे। जैसे ही मैं एक आगे गली में पहुंचा, वहाँ दोस्तों ये आग से चलने वाला खेल दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं ये लोग। पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैलेसेस, कैथेड्रल, और ये उनमें से एक और है। आसपास लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है। तो दोस्तों, हो चुकी है शाम सेंट पीटर्सबर्ग में। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, और सबसे इंटरेस्टिंग तो था ये म्यूज़ियम देखना। काफ़ी यूनिक टाइप का म्यूज़ियम था, और आज से पहले मैंने तो कभी ऐसा कोई म्यूज़ियम नहीं देखा है। अगर आपने कभी ऐसा कोई म्यूज़ियम देखा है, या फिर कहीं पे भी इंडिया में कभी ऐसा कोई म्यूज़ियम देखा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।